Good morning everyone. In the last class we did three equation of motion. We derived three equation of motion. Now in today's physics class we will solve the numerical based on these three equations of motion. So first one is v minus u is equal to at. Second, s is equal to ut plus half at square. Third, v square minus u square is equal to 2as. Now read the question carefully, understand it, and then we will write the data whatever it is given in the question. Okay. Now question number 1, a bus starting from rest. What does it mean? कि बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मीन्स इनिशियली इट वॉज एट rest. So means initial velocity is 0 here. So you will write u is equal to 0. Okay. Moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Move कर रही है कितनी acceleration से? 0.1 meter per second square. Now see, this is not the final velocity. What is given here? Acceleration. You can see from the units also. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की. सो एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम 2 मिनट्स. टाइम इज गिवन टू यू 2 मिनट्स. देखो अब ये SI में मीटर पर सेकेंड, सो दिस शुड ऑल्सो बी इन SI यूनिट्स. सो यू विल कन्वर्ट 2 मिनट्स इनटू seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. So 2 minutes will be equal to 2 into 60, that is 120 seconds. Okay. Now see, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. यहाँ तक हमने डेटा जो था वो एनालाइज करके we have written. Now what we have to calculate? Find द स्पीड एक्वायर्ड. उसमें कितनी स्पीड आ गई, यानी कि फाइनली उसकी वेलोसिटी अब कितनी है. पहले तो वो रेस्ट पे था, तो मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट वी. बी पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज एस. सो मीन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी वी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस. ओके. नाउ सी विच इक्वेशन विल यू यूज. आपने v कैलकुलेट करना है. v कैलकुलेट करेंगे आप इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में v तो है ही नहीं. ठीक है ना, v इसमें है ही नहीं. देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. v इज नॉट हेयर. सो ईदर यू विल यूज फर्स्ट इक्वेशन और यू विल यूज थर्ड इक्वेशन. नाउ यू हैव टू सी कि क्या डेटा गिवन है, आप कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे. ठीक है. सो सी, अगर आप मैं थर्ड इक्वेशन लूँ, v मुझे कैलकुलेट करना है. u इज गिवन टू मी 0, a इज गिवन टू मी 0.1, बट s इज नॉट गिवन. सो इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स जो हैं वो अननोन हो गए, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे. देन कम टू द फर्स्ट इक्वेशन. v इट इज अननोन, you have to calculate. u is given, a acceleration is given 0.1, t 120 सेकेंड is given. so means सब चीजें given है, सब डेटा जो है आपका given है, सिर्फ आपको v इसमें कैलकुलेट करना है. only one variable is unknown, so you will use this equation number 1. so apply using equation 1. v minus u is equal to at. v it is unknown to you, you will write as such, then minus sign. u कितना given है? 0. तो you will substitute the value of u now, equals a is 0.1. so you will substitute the value of a as 0.1. at means into t is given to you 120 seconds, so you will write here 120. okay. v minus 0 is v equals to 0.1 multiply 120. 120 is 12. how? देखो पॉइंट जो है वो 1 डेसिमल इधर है, तो यहाँ पे भी पॉइंट 1 डेसिमल इधर आ जाएगा, तो इट बिकम्स 12. एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो यू गेट v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. नाउ secondly we have to calculate the distance travel, means you have to calculate s. नाउ s जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें s है ही नहीं. नाउ सी द सेकेंड वन एंड थर्ड वन, इनमें से एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं.
If you use second equation, see, as you have to calculate, u be given hai, t be given hai, a and t, it is given. You can use the second one as well as you can use the third one. How? v आपने calculate अभी कर लिया ना, 12 आ गया, u भी given है, a भी given है, ऐसा आपको निकालना है, calculate करना है. तो आप दोनों में से कोई भी equation जो है आप वो use कर सकते हैं. तो here I have used second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. U is 0, t is 120. तो 0 into 120 plus ये हाफ यहाँ a की वैल्यू 0.1 t स्क्वायर. टी स्क्वायर मीन्स टाइम का आप स्क्वायर करेंगे, टाइम की वैल्यू इज 120, उसका स्क्वायर हो जाएगा 120 स्क्वायर. 0 मल्टीप्लाई 120 इज 0 प्लस हाफ 0.1, 120 को मैंने एक्सपैंड कर दिया 120 इंटू 120. ओके, सो 2 1 द 2, 2 6 द 12 एंड 0. नाउ 12 इंटू 6 72 और साथ में 2 zeros आ जाएंगी. 12 इंटू 6 72, दिस 0 एंड दिस 0 साथ में 2 zeros हैं, तो 7200. ओके, मल्टीप्लाई में 0.1 है. नाउ 0.1 है तो पॉइंट विल शिफ्ट हेयर, तो इट इज 720 मीटर. So distance covered in question number 1 is 720 meter. So दोनों आपने values जो है वो निकाल ली. V is 12 meter per second and distance covered is 720 meter per second. Now question number 2. A train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ब्रेक लगाए तो क्या होगा, इट्स स्पीड विल डिक्रीज, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर क्लासेस, इन माय प्रीवियस क्लासेस, कि तब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है अगर फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस हो. नाउ इन दिस केस पहले वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन. नाउ ब्रेक्स आर अप्लाइड तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी वो. ठीक है, हेयर इट इज रिटन, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. जैसे ब्रेक लगाई ट्रेन की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट. सो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 एंड इनिशियली इट वाज 90 किलोमीटर पर आवर. और इस केस में एक्सेलरेशन कितनी है आपकी, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन इज हेयर, व्हाई, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन initial velocity. And then you have to calculate, find how far the train, कितनी ट्रेन दूर गई. ब्रेक लगाई तब ट्रेन थोड़ा सा तो चलती है, तो उस टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. सो यू हैव टू कैलकुलेट s. रेस्ट से आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यू विल कैलकुलेट s here. ओके, हाउ फार मीन्स डिस्टेंस. ओके, नाउ यू विल यूज विच इक्वेशन, VUAS. कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन. Why? Because V is given to you, U is given to you, 2, A की value is also given, you have to calculate only S, only one variable is unknown, so you will use this equation. बच्चे आपको ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके ये डाटा जो डेटा है ये आप निकालेंगे, लिखेंगे उसको, देन यू विल इंटरप्रेट कि विच इक्वेशन यू विल यूज. ओके, इसको ध्यान से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. नाउ सी हियर, एक्सेलरेशन इट इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज अ किलोमीटर पर आवर. तो इसको भी आपको मीटर पर सेकेंड में करना होगा. सो हाउ यू विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, बाय मल्टीप्लाई 90 इंटू 5/18. तो आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो सी 9 to the 18, 9 10 the 90, देन 2 के टेबल से 2 1 the 2, 2 5 the 10. हियर 5 इंटू 5 इज 25, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं है. ठीक है, तो इट इज 25 मीटर पर सेकेंड. नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, we will substitute the values given in the question. V is 0, U is 25, U का स्क्वायर है तो V 25 का स्क्वायर is equal to 2 into A. A is -0.5 into S. Okay, 0 square is 0 minus 25 का स्क्वायर is 625 equals to 2 multiply 0.5, 1 आएगा, साथ में माइनस साइन, प्लस माइनस इज माइनस S.
ओके. सो 0 माइनस 625 इज माइनस 625. यहाँ माइनस 1s है, s यू हैव टू कैलकुलेट. तो 1 को आप जब उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 जो है इट इज इन मल्टीप्लाइंग, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाई विद s. व्हेन इट गोज टू द अदर साइड ये डिवाइड में आ जाएगा. ओके. सो 0 माइनस 625 इज माइनस 625, और ये माइनस 1 जब इधर आया तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कट जाएगा. 625 अपॉन 1 इज 625 meter. So distance covered by the train before it is brought to rest is 625 meters. Okay. Now see question number 3. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? एक ट्रॉली जो है वो इंक्लाइन प्लेन में ऐसे जा रही है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन उसकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद 3 सेकेंड्स के तक उसकी बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो टाइम इट इज गिवन हियर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मीन्स स्टार्ट जब नहीं हुई, मतलब स्टार्ट जब नहीं थी तो इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट. ठीक है. सो u इज 0, यू हैव टू कैलकुलेट v. v u a t. तो विच इक्वेशन you will use? First, v minus u is equal to a t. v is unknown to you. u is 0, a you have t 2 and t is given to you, that is 3 seconds. So v minus 0 is v. 2 3 the 6. अब आप मीटर पर सेकेंड यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये सेंटीमीटर में था ना, तो आप यहाँ सेंटीमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. सो v इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. A racing car has uniform acceleration of 4 meter per second. एक रेसिंग कार की एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन आई हैव रिटन हियर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What distance will it cover? यानी आपको S निकालना है, कितना डिस्टेंस से कवर करती है इन 10 सेकेंड्स. कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में. टाइम इज 10. आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, यानी कि इनिशियल इट वॉज एट रेस्ट, तो मीन्स u इज 0. ठीक है. टाइम सेकेंड, टाइम आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है एंड S यू हैव टू कैलकुलेट. नाउ सी UATS. What is the relation between these quantities? Second equation of motion, S is equal to UT plus half AT square. तो आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे. U is 0, T 10 है, प्लस हाफ A is 4, T square 10 का स्क्वायर. नाउ 0 into 10 is 0, प्लस 2 1 the 2, 2 to the 4. 10 का स्क्वायर इज 100, 100 into 2 is 200. So 0 plus 200 is 200 meter. So in question number 4, distance traveled by the racing car is 200 meter. Now see the question number 5. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. एक स्टोन को जो है थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. सपोज दिस इज अ स्टोन, इसको ऊपर थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी तभी ऊपर मूव करेगा. सो u जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. नाउ when it will attain a certain height, suppose यहाँ तक आएगा, तो what will happen? उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो वेलोसिटी दी यहाँ आकर वो at the highest point it becomes 0. यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसीलिए इसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया. तो फाइनली इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो उस केस में आपको u गिवन है और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. ओके. तभी वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है. तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0. ओके. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड. ओके. नाउ सी, if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, अगर acceleration जो है वो stone की कितनी है? 10 meter per second square in the downward direction.
अब देखो स्टोन जा रहा है ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन इज गिवन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई. मोशन स्टोन का इट इज इन दिस डायरेक्शन अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो अपोजिट है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट माइनस साइन हियर. Okay, so minus 10 meter per second square. In question it is given 10 meter per second square in the downward direction. Acceleration is given in the downward direction and your motion is in the upward direction. So direction opposite होने की वजह से I took the acceleration as negative. Okay, minus sign indicates that the direction is opposite. Minus 10 meter per second square. Okay, now what will be the height attained by the stone? इसने कितनी हाइट अटेन की, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा पहुँचने में, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो हेयर u इज गिवन टू यू, एक्सेलरेशन माइनस में है बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, v इज 0 बिकॉज फाइनल वेलोसिटी 0 है. हाउ, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट. वाई, क्योंकि यहाँ आकर उसकी वेलोसिटी हो गई 0. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन फाइनल वेलोसिटी एज 0. नाउ s एंड t यू हैव टू कैलकुलेट. नाउ v u a, तो t तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v माइनस यू इज इक्वल टू a t. v 0 है, u आपका 5 है, a माइनस 10 है, देन t. 0 minus 5 is minus 5. Minus 10 into t is minus 10t. आप t को इधर रखेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, तो it will become minus 5 upon minus 10. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 5 on the 5, 5 to the 10, तो it is 1 upon 2. 1 upon 2 मतलब 0.5 सेकेंड. बच्चे जब आप सॉल्व करते हैं ना न्यूमेरिकल्स को, आप 1/2 को आप 2 आंसर लिख देते हैं. इट इज रॉन्ग. 1 upon 2 यानी कि हाफ. 1 upon 2 is 0.5. Okay, 0.5 second. Now you will calculate, you have calculated t. Now s. s आप कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे? You will use थर्ड इक्वेशन. ठीक है, आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं. देखो u भी गिवन है, t भी गिवन हो गया 0.5 a t स्क्वायर. आप सेकेंड भी यूज कर सकते हैं. You can use either second और थर्ड. Okay, कोई भी इक्वेशन आप यूज करो. Here I have used the third equation. V square minus u square is equal to 2as. V is 0, u is 5. I have substituted the values. 2 a की value is minus 10 into s. 0 का square is 0 minus 5 square is 25. 2 multiply minus 10, 2 10 the 20 with minus sign, plus minus minus into s. Okay, 0 minus 25 is minus 25. और ये जो माइनस 20s के साथ मल्टीप्लाई में है, व्हेन इट गोज टू द अदर साइड ये डिवाइड में आ जाएगा. तो माइनस 25 अपॉन 20 इक्वल्स टू s. माइनस से माइनस कैंसिल, सो 5 4 द 20, 5 5 द 25. 5 डिवाइडेड बाई 4 रह गया. इट इज 1.25 मीटर. सो s इज 1.25 मीटर. ओके, सो इन द असाइनमेंट ऑल्सो आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस. ओके, आप 3 क्वेश्चंस को पहले अच्छे ढंग से बेटा आप समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करना है वंस, ट्वाइस और थ्राइस. आप उसको पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करिए. जो भी डेटा आपको लगता है कि जो वॉट एवर इट इज गिवन, यू विल राइट द डेटा, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देन कैलकुलेशंस, एंड व्हाइल राइटिंग आंसर डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. एम आई क्लियर? ओके, एंड जो भी आप इक्वेशन यूज करेंगे, आपने पहले डेटा के अकॉर्डिंगली देखना है कि आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे. ओके, सो डू द असाइनमेंट केयरफुली. Okay, thank you all and have a nice day.